السلام علیکم، PIDAG کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور وفاقی وزیر دفاع جنرل ریٹائرڈ انور حیدر علی نے بین الوزارتی کمیٹی کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ اجلاس میں نیلم جہلم ہائیڈرو پاور معاہدہ، منگلا ڈیم اپریزنگ کے مسائل، بجلی کی فی یونٹ پیداواری قیمت، رٹھوا ہریام پل کی تعمیر نو اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں موسٹ سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور، وزیر قانون انصاف و پارلیمانی امور میاں عبدالوحید، وزیر خزانہ عبدالماجد خان، وزیر امور منگلہ چودھری قاسم مجید، وزیر برقیات چودھری ارشد، چیف سیکرٹری داؤد محمد بڑیچ اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ترقیات فیاض علی عباسی نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران نیلم جہلم ہائیڈرو پاور معاہدہ، منگلا ڈیم اپریزنگ کے مسائل، بجلی کی فی پیداواری قیمت، رٹھوا ہریام پل کی تعمیر نو اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تمام معاملات پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور انہیں حل کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کا وفاقی وزیر دفاع جنرل ریٹائرڈ انور حیدر علی کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے پر شکریہ ادا کیا۔ کمیٹی نے اجلاس میں تمام مسائل پر ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جو TOR کے مطابق سفارشات مکمل کرتے ہوئے مرکزی کمیٹی کو رپورٹ پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا پہلا اجلاس حوصلہ افزا ہے، اس سے مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بین الوزارتی کمیٹی مسائل کا ادراک کرتے ہوئے ان کا قابل عمل حل تجویز کرے گی جس سے دیرینہ مسائل حل ہوں گے۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت و وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا ہے کہ ہندوستان 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ سے منظور حق خود ارادیت کی قرارداد پر عمل درآمد کا وعدہ پورا کرے۔ حق خود ارادیت اور الحاق پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت و وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا ہے کہ ہندوستان کے حالیہ یک طرفہ اقدامات اقوام عالم سے کیے گئے وعدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ کے یک طرفہ اور بدترین ناانصافی پر مبنی اقدامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہندوستان کی ہندوتوا ایجنڈے پر قائم حکومت سلامتی کونسل سے منظور شدہ قراردادوں کی مسلسل نفی کر رہی ہے۔ بدترین ریاستی دہشت گردی اور مظالم کسی طور قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی قیادت میں حکومت آزاد کشمیر مسئلہ کشمیر کو ہر فورم پر اٹھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے اور کشمیریوں کو ہندوستانی جبر و استبداد سے نجات دلاتے ہوئے حق خود ارادیت کا وعدہ پورا کرے۔ حق خود ارادیت اور الحاق پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی منزل پاکستان ہے۔ بھارتی ہندوتوا راج پر قائم حکومت اور بھارتی سپریم کورٹ کے یک طرفہ متعصبانہ اور توسیع پسندانہ اقدامات قابل قبول نہیں ہیں۔ ہندوستانی حکومت جان لے کہ مسئلہ کشمیر کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آزاد کشمیر کی یہ نمائندہ حکومت وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی قیادت میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ہندوستانی جبر و استبداد کے ہتھ کنڈوں سے آزاد کروانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے بنیادی مطالبات حق خود ارادیت کا مقدمہ ہر سفارتی اور سیاسی فورم پر بھرپور انداز میں اٹھایا۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے متعلق فیصلے کے خلاف ریاست گیر احتجاج کا آغاز 7 جنوری کو کوٹلی سے ہوگا۔ احتجاج میں کابینہ ممبران، اراکین اسمبلی، حریت قیادت اور سیاسی جماعتوں کے قائدین شرکت کریں گے۔ وزرائے کرام ڈاکٹر نثار انصر عبدالی اور چودھری محمد اخلاق کی زیر صدارت جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ہندوستانی سپریم کورٹ کے متعصبانہ اور توسیع پسندانہ اقدامات کے خلاف آمدہ 7 جنوری سے ریاست گیر احتجاج کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر چودھری حق نواز اور SSP میر محمد عابد نے وزرائے حکومت کو تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حکومت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی نے کہا کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ریاست جموں و کشمیر کی شناخت ختم کرنے کے متعلق ہندوستانی پارلیمنٹ کا فیصلہ برقرار رکھ کر سنگین عدالتی تعصب کا مظاہرہ کیا، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 7 جنوری کو وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں کوٹلی سے احتجاجی جلسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، جن کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری قوم کی موجودگی میں ہندوستان مقبوضہ جموں و کشمیر کو ہڑپ نہیں کر سکتا۔ کوٹلی میں احتجاجی جلسے کے دوران کابینہ ممبران اسمبلی، حریت قیادت سمیت ہزاروں افراد شریک ہوں گے۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے
वजीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक ने कहा कि रियासत जम्मू और कश्मीर की शनाख्त कोई नहीं छीन सकता। लाखों शहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी और मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर की जाली तरक्की के दावों और कॉन्फ्रेंसों का इनाकाद करके दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। इजलास के बाद वज़राए कराम ने जलसागाह का मुआयना किया और हिदायत जारी की। इस मौका पर बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जलसे के लिए तमाम महकमाजात को हिदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुतलका महकमाजात के जुमला अफसरान जिम्मेदारियों की अंजाम दही के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएं। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपने देरीना साथी खुर्रम पाशा की अचानक वफात पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपने देरीना साथी खुर्रम पाशा की अचानक वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सदर रियासत ने कहा कि दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम खुर्रम पाशा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर अमूर मंगला डैम और मंगला हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी कासिम मजीद ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सच्चे, खरे और बेबाक शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म के दौरे मीरपुर से अवामी तवक्कात पूरी होंगी। वज़ीर अमूर मंगला डैम और मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी कासिम मजीद ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के दौरे मीरपुर के हवाले से अवामी वफूद के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे मीरपुर से अवामी तवक्कुआत पूरी होंगी, हुकूमत पर अवामी एतमाद को तक़वियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे मीरपुर से तहरीक आज़ादी कश्मीर पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। सियासतदान दिन रात अवामी खिदमत और फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ अमल रहता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 75 सालों के मसाइल वज़ीर आज़म की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत बर्क रफ्तारी से कानून और कायदे के मुताबिक हल कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमने सरकारी मुलाजमीन को हाजिरी का पाबंद कर दिया है, इदारों की तौकीर को बहाल किया जा रहा है। हुकूमती इकदामात से करप्शन का गढ़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रठुआ हरियाम ब्रिज की ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म की हिदायत से इस कौमी नवीयत के मनसूबे की तकमील में हायल तमाम रुकावटें दूर होंगी। उन्होंने कहा कि मनसूबे की तामीराती फर्म ने कैंप ऑफिस कायम करके तामीराती काम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म के दौरे मीरपुर पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और एक्शन कमेटियों मजलिस आमला के अरकान ने हुकूमत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर सियाहत आसार कदीम मवादनी वसाइल आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी ने हल्का बलूच की सियाहती मकाम चार ब्याड़ यादगार शोहदा एयरपोर्ट पार्क में दीगर तारीखी सियाहती मकामात का दौरा किया। वज़ीर सियाहत आसार कदीम मवादनी वसाइल आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी ने हल्का बलूच के सियाहती मकाम चार ब्याड़ यादगार शोहदा एयरपोर्ट पार्क में दीगर तारीखी सियाहती मकामात का दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर सियाहत ने तारीखी अहमियत के हामिल मकामात को महकमा आसार कदीमा की तहवील में लेने और सियाहों की सहूलियात के लिए मुख्तलिफ मनसूबाजात का ऐलान किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सियाहत ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियाहत को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर सियाहत पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। सियाहत हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियाहत के वसी पोटेंशियल से अवामी रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर अवामी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी। तर्जुमान इनलैंड रेवेन्यू ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इनकम टैक्स गोशवाराजात रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 31 दिसंबर तक मजीद तोसी कर दी गई है। शहरी आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय इनकम टैक्स गोशवाराजात ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। तर्जुमान इनलैंड रेवेन्यू आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि शहरी इनकम टैक्स के गोशवारे जल्द अज जल्द जमा करवाएं। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक गोशवाराजात बर वक्त जमा करवाना लाजिम है। जायदाद और दीगर गैर जरूरी टैक्सेस से बचाव के लिए फाइलर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शहरी 31 दिसंबर से कबल अपने अपने टैक्स रिटर्न के गोशवारे जमा करवाएं ताकि गैर जरूरी टैक्सेस से बचा जा सके। तर्जुमान इनलैंड रेवेन्यू के मुताबिक नाफाइलर्स के यूटिलिटी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर की जानिब से दिए गए सुनहरे मौके से फायदा उठाएं और मुकर्ररा तारीख से पहले अपने टैक्स गोशवाराजात ऑनलाइन लाजमी जमा करवाएं और अपने कौमी फरीज़े की अदायगी के साथ साथ रियासती और मुल्की माशी इस्तेहकाम में भरपूर किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर बाग मुदस्सिर फारूक ने कहा है कि जिला बाग में आमदा पोलियो मुहिम के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बाग मुदस्सिर फारूक की ज़ेर सदारत आमदा इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जिला बाग में आमदा 8 से 12 जनवरी 2024 इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तमाम तर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बाग मुदस्सिर फारूक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आमदा पोलियो मुहिम में तमाम तर वसाइल बरोकार लाते हुए 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले सतह के तमाम
तमाम मुतलका महकमा जात महकमा सेहत की टीमों के हमरा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान हर तरह की मुआवनत फराहम करेंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि मजबूत मैकेनिज्म के साथ इंसदाद पोलियो मुहिम की निगरानी की जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए शहरी महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। उन्होंने कहा कि शहरियों से अपील है कि आमदा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान घर घर आने वाली टीमों से अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं ताकि नई नस्ल को इस मोहलिक बीमारी से बचाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर सदनोती राजा सदाकत खान की ज़ेर सदारत ज़िले पोलियो एरेडिकेशन कमेटी के इजलास का इनेकाद। जिला भर में आमदा पोलियो मुहिम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सदनोती राजा सदाकत खान की ज़ेर सदारत पोलियो एरेडिकेशन कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सुपरिटेंडेंट पुलिस सदनोती अदील अहमद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सदनोती राजा तारिक इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सरदार जाहिद हुसैन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पोलियो मुहिम के इंचार्ज डॉक्टर मसूद खालिद समेत महकमा सेहत आमा और WHO के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में जिला सदनोती में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम 8 जनवरी तक 12 जनवरी जारी रहेगी। इस मौके पर चेयरपर्सन पोलियो एरेडिकेशन कमेटी डिप्टी कमिश्नर राजा सदाकत खान ने कहा है कि सदनोती के पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए आवाम 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत आमा की टीमें इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए घर घर जाएंगी। आवाम महकमा सेहत की टीमों के साथ हर मुमकिन ताउन को यकीनी बनाएं। इस मौके पर DHO सदनोती डॉक्टर तारिक इकबाल ने कहा है कि जिला भर में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 26 फिक्स सेंटर्स और 11 ट्रांजिट पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। अलावा पोलियो टीमों की निगरानी के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर 35 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुअस्सर मुहिम के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली ने कहा है कि भारत कश्मीरियों की जदोजहद को दबाने के लिए वहशियाना फौजी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जबर को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। चेयरमैन पासबान हुर्रियत जम्मू और कश्मीर उज़ैर अहमद गजाली ने मुजफ्फराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत हक़ खुद अरादियत के हसूल की जिद्दोजहद को दबाने के लिए वहशियाना फौजी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीरियों की जारी जिद्दोजहद अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करदा करारदादों के तनाज़ुर में एक कानूनी तहरीक है। उन्होंने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के आवाम से अपील की है कि वो आमदा 5 जनवरी को रैलियों और आवामी जमात के जरिए दुनिया को बताएं कि हक़ खुद अरादियत हमारी मंजिल है। हक़ खुद अरादियत के अलावा कोई ऑप्शन कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय जबर के हथकंडों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे, तसल्लुत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हक़ खुद अरादियत हमारी मंजिल है। चेयरमैन पासबान हुर्रियत ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसले से साबित हो गया है कि भारत किसी तौर पर बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी नहीं कर रहा। याद रहे कि कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 5 जनवरी को यौम हक़ खुद अरादियत के तौर पर मनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 5 जनवरी 1949 को एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत को तस्लीम किया गया था। PID डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।